Good morning, students. How are you? I hope you are doing very well. So we have completed chapter number 1, Monkey Trouble. I hope you have learnt as well and completed your notebooks. Let's move to another chapter, that is Birdie Will You Pet? And this is a poem, very beautiful poem, and it is written by W. Ellingham. So let's start. If asked to choose between money and freedom, what would you choose and why? Let's say if I ask you, just get you closed in one room and I'll give you all the money. Will you be ready for that? No. You will choose your freedom. Can you think a few things that come with freedom and cannot be bought with the money? क्या आपको ऐसी चीज़ों के पता है जो फ्रीडम के साथ आती है पर आप मनी के साथ नहीं खरीद सकते? Obviously there are few things in life that we can't buy with money. We can't buy our freedom and happiness with money. So now read the poem given below. A child is tempting a bird to her pet. Tempting means क्या होता है? Tempting means lure, means ललचाना. ठीक है, अभी जैसे हम एक पिंजरे में एक चूहे को बंद करते हैं, उसके अंदर हम एक बेट रखते हैं, पनीर रखते हैं, या हम एक चपाती का एक पीस रखते हैं, तो उससे क्या है, वो दैट इज़ टू ल्योर द रैट सो दैट इट कम इनटू द दैट पिंजरा, राइट? सो इन द सेम वे हेयर, it is a sweet cute birdie and this is a girl. What she wants her to be her pet. वो चाहती है कि ये जो बर्डी है वो उसकी पेट बने, उसको अलग अलग तरह के लालच देती है, लाइक ए बेड और बहुत सारी चीज़ें. तो what the child says, now this girl, baby child, what she says, birdie means bird. Birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You will have silken quilts and velvet bed and a pillow of satin for your head. What she is saying that birdie, oh dear bird, क्या आप मेरे pet बनोगे? Will you pet? Here question have been, why question mark is used here? Because question has been raised by child to bird, right? Summer time is far away yet. You will have silken quilts and velvet bed. What she says कि समर टाइम अभी दूर है, ठीक है, फार अवे है, तो इसलिए यू विल हैव, इफ़ यू विल बिकम माई पेट, आई विल गिव यू सिल्कन क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मीन्स क्या होता है? रजाई, जो आप विंटर्स में यूज़ करते हो ना, कि समर्स तो है नहीं, तो आई विल गिव यू क्विल्ट्स ऑफ मेड ऑफ सिल्क. सिल्क की जो बहुत एक्सपेंसिव क्विल्ट्स होती हैं. एंड वेलवेट मीन्स सॉफ्ट मुलायम, और आपको मैं एक सॉफ्ट मुलायम बेड दूंगी सोने के लिए, लाइक दिस इज सिल्कन क्विल्ट, दिस इज बेड. एंड द पिल्लो ऑफ सैटिन इज ऑल्सो गुड क्वालिटी क्लोथ. और मैं इस बर्ड को कह रही कि मैं आपको एक पिल्लो दूंगी सैटिन का, फॉर योर हेड, मतलब अपने सर के नीचे रखने के लिए. सो इन फर्स्ट स्टैंजा she is trying to tempt the bird by offering her silken quilts, velvet bed and a pillow of satin. Very good. Next, I would rather sleep in the ivy wall. No rain. Here bird, but it is replying to baby. I would rather sleep in ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of the day, and I sing and wing away. What the bird is saying कि I would rather sleep, कि नहीं, मैं तो इससे अच्छा अपनी ये जो आईवी वॉल है, आईवी क्या होता है, जो क्रीमिश कलर, प्योर वाइट नहीं होता, ठीक है, क्रीमिश कलर का जो आईवी होता है, जैसे हाथी, एलिफेंट जो के टीथ होते हैं दो बिग वाले, वो आईवी कलर के होते हैं, ठीक है. तो कहती है आई वुड रादर, मैं अपनी आईवी वॉल में सो जाऊंगी जहाँ पे कोई रेन नहीं आती. दो आई हियर इट फॉल, बट आई कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन is falling. The sun peeps means झांकना, look into. Gay means happy. At dawn of the day. अच्छा, एक होता है dawn, to dusk. dawn मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग. dawn means क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग. एंड dusk मीन होता है इवनिंग टाइम.
राइट। सो अर्ली मीन्स 4 o'clock का टाइम होता है इवनिंग, जब सन रेड कलर का होता है, दैट इज द इवनिंग टाइम, डस्क टाइम. So the sun peep means the sun looks, it can see the sun at the dawn of the day, and I sing and wing away. और मैं गाती हूँ, ऊपर घूमती हूँ और मैं उड़ती हूँ. Now she is free, so she is not ready to sacrifice her freedom just for the sake of these things, right? Let's move to the, और इसकी जो राइम स्कीम है वो ABAB है. कैसे? पेट, येट, वेलवेट, बेड, हेड. ठीक है, तो दिस इज द राइम स्कीम. और जैसे ये अवे है, एंड दिस डान ऑफ द डे है. रिपीटिशन ऑफ अ साउंड, जहाँ रिपीटिशन ऑफ ये लेटर्स होता है रिपीटिशन, वहाँ पे हम यूज करते हैं एलिट्रेशन. विच फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन. सो हेयर द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. नेक्स्ट, चाइल्ड. Oh birdie, birdie, will you pat diamond stones, amber jet? We will string on a necklace fair and fine to please this pretty bird of mine. फिर से उसको ल्योर करती है चाइल्ड कि ओ बर्डी, क्या मेरे पेट बनोगे? I'll give you diamond stones and amber. Amber means होता है, यहाँ देखो मीनिंग रिटर्न है, एम्बर अ ब्राउन सब्सटेंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी. एक्सपेंसिव एक सब्सटेंस होता है जिससे ज्वेलरी बनती है. कि मैं एम्बर और जेट से, डायमंड से आपको एक नेकलेस, वी विल स्टिंग ऑन अ नेकलेस, आपको एक नेकलेस बना के दूंगी, दैट इज फेयर एंड फाइन टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन. इन दिस पैराग्राफ शी इज ऑफरिंग अ नेकलेस दैट इज मेड ऑफ कॉस्टली डायमंड्स, एम्बर एंड जेट. Bird, oh thanks for diamonds and thanks for jet, but here is something daintier yet, a feather necklace round and round that I would not sell for 1,000 pounds. Ab daintier means sweeter. What she is saying, oh thank you for diamonds, thank you for jet, मेरे पास कुछ अलग है, कुछ sweeter है, I have sweeter yet. She is preferring feather necklace. I would wear feather necklace round and round, and that I would sell for 1,000 pounds. और मैं वो 1,000 pounds भी आप मुझे दोगी ना, I would not sell that for 1,000 pounds. Child, oh birdie, birdie, won't you pet? Will you buy a dish of silver thread, a golden cup and iris seat, and carpet soft beneath your feet? सिल्वर फेट डेकोरेटेड विथ सिल्वर थ्रेड. ओ बर्डी, बर्डी, क्या आप मेरी पेट बनोगे? मैं आपको एक सिल्वर फेट होता है डेकोरेटेड, मैं आपको एक खाने के लिए मतलब एक डिश दूंगी जिसके अंदर सिल्वर की उसकी डेकोरेशन होगी. एक गोल्डन कप आई विल गिव यू, आइवरी सीट दूंगी, और कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट, और आपके फीट के बीनीथ ये कारपेट होगी सॉफ्ट. देखो ये कप. और हेयर शी इज अगेन ऑफरिंग लग्जूरियस थिंग्स. बट बर्ड क्या कहती है? कैन रनिंग वाटर बी ड्रंक फ्रॉम गोल्ड? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्डर रॉकिंग ट्विज इज द फाइनेस्ट चेयर? कहती क्या रनिंग वाटर गोल्ड में से पिया जाता है? नहीं. क्या एक सिल्वर डिश फॉरेस्ट से मिलती है? नहीं. अ रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर मीन्स, रॉकिंग ट्विग क्या होती है? जो शाखा होती है ना पेड़ की, उसकी जो होती है एक स्टिक सी, वो उसकी फाइनेस्ट चेयर है जिसके ऊपर बर्ड बैठता है ना. जैसे एक ट्री है, इस तरह की ट्विग होती है और इसके ऊपर बर्ड बैठता है. एंड द सॉफ्टेस्ट पास लाई थ्रू द एयर. कहती मेरे लिए तो सॉफ्टेस्ट पास तो जो एयर में है वो है. गुड बाय टू माई लेडी फेयर, वो उसको गुड बाय बोल देती है. इट मीन्स here the bird is not pleased, she prefers freedom over these luxurious things. That's why freedom is always important to us. हमें भी किसी भी पेट को ऐसे अपने कैद करके नहीं रखना चाहिए. let them set free. Thank you.